Hello everyone. I hope everyone is busy working on respective goal oblique career. Everyone should. जेके बैंक के भरोसे मत बैठो. अपने काम करते रहो अच्छे से. साथ साथ में इस लड़ाई को लड़ते रहो. We will continue this fight till we win. काफी देर से कोई वीडियो नहीं बनाई, ना ही कुछ ज्यादा अपडेट थी, बट काम चल रहा था साइड बाय साइड. But still, I feel like I should make another video. That's why here I am. So I'm going to wind up this video in few sections. First of all, I'll be delivering an urgent message for all the 47,816 candidates and a little task for them. Then I'll be telling a brief about this legal fight, then the current status, progress, as well as possible outcome, a little about strategy of this fight. Then there is a message for general public, and in the last, special message for J&K Bank. So the urgent message, since this fight is for all those candidates who have been through the process of recruitment of relationship executive officer, this fight is to challenge the whole recruitment process. So anyone who has been the part of this process can come forward and be with us. इसलिए हर कोई जिसने ये एग्जाम दिया है, जो सेटिस्फाइड नहीं है इस प्रोसेस से, वो हमारे साथ जुड़ सकता है और लीगली हमारे साथ पिटिशनर बनने के लिए सेंड मी योर डॉक्यूमेंट स्कैन करके मेरी ईमेल पे मुझे सेंड करें. मेरी ईमेल मेरे फेसबुक पोस्ट पे होगी और मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा. आई वॉन्ट यू टू सेंड योर इंटरव्यू लेटर इफ यू हैव बीन इंटरव्यूड, एंड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु वर ड्रॉप्ड आउट ऑफ द रिटन रिजल्ट, I want them to send me their written admit card. काफी बंदों के पास इन दोनों में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. I have been getting this from a lot of candidates. So I want you to send another document like application form, registration form, चालान फीस, कुछ ना कुछ तो होगा. बट स्टिल अगर इन सब में से आपके पास कुछ नहीं है तो एक डॉक्यूमेंट J&K बैंक ने खुद खर्चा करके तुम्हारे घर में तुम्हें अच्छे से दिया है, जिससे तुम इजीली पिटिशनर बन सकते हो. पता होगा कैविएट, एक नहीं 6 भेजे हैं. थैंक यू बोलो J&K बैंक को, तुम्हारी प्रोसेस उन्होंने आसान कर दी. सो आई वांट यू टू सेंड दीज डॉक्यूमेंट्स, प्रेफरेबली एडमिट कार्ड्स. इफ नॉट देन सेंड एप्लीकेशन फॉर्म और कैविएट, बट मेक श्योर दैट यू आर स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट फर्स्ट. इफ यू हैव द PDF already saved in your computer, then send it to me just by email. बट इफ यू हैव इट इन एज इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी लाइक कैविएट, तो आपके पास हार्ड कॉपी में होंगे, उनको पहले स्कैन कराओ एंड देन सेंड इट टू मी सो दैट क्वालिटी रहे. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू मेंशन योर स्टेटस, लाइक वेदर यू आर रिटन ड्रॉपी और यू आर इंटरव्यू ड्रॉपी or you have been selected as BA and are presently working in the bank, that you can also be with us. Or if you were selected as BA but you are not working in J&K Bank, you have some other job or you are preparing for some other exam, even if you are working as RE, then also mention that you are RE and you are working in the J&K Bank. And if you have been selected as RE and you haven't joined J&K Bank and you feel that you should come forward in this fight against J&K Bank, then be with us. And yes, all the 47,816 candidates can be the part of this legal fight, even those who are already working in the bank. वो कैसे होगा, I am not going to disclose that. So this was the urgent message and a task for all of you. अभी तक I have received some 86 or 87 letters that I have received so far. So I want this to be in thousands so that a greater impact pade. So let me tell you a brief about this legal fight. This fight is to challenge the recruitment process conducted by J&K Bank for the post of relationship executive officer. In a brief, the J&K Bank took 2 years to conduct this whole recruitment process. They conducted it in a very secretive way, without any proper guidelines, no timeline, no standard procedure. Everything was done secretly. The fun part is that out of 47,816 candidates,
they selected only 350 candidates as relationship executive officer. इतना ही नहीं, 1250 candidates were selected as banking associates. This post, title named banking associates, this post was not aware to anyone who has been waiting for the final result to come. They were told about this, they came to know about this banking associate on the last day, that is when it had already taken 2 years. तो मतलब कि फॉर्म फिल किया था आरई का, लेकिन जॉब मिल रही है क्लर्क की. तो मे बी इन नियर फ्यूचर अगर आपको J&K बैंक में गेट कीपर लगना है या सफाई वाला लगना है, कुछ भी, मतलब कि मैं आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि सफाई या बैंक या गेट कीपर, एनी जॉब, आपको चाहे सीईओ भी लगना होगा तो तब भी भाई आपको आरई का पेपर देना है. हम आरई का पेपर लेते हैं और उसमें हम सारे पोस्ट जो है फिल करते रहते हैं. दैट्स व्हाट J&K बैंक इज ऑल अबाउट. इनफैक्ट आई मस्ट ऑल्सो मेंशन दैट सीबीआई, रॉ और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, इनको सीखना चाहिए कि कोई रिक्रूटमेंट सीक्रेटली वे में कैसे करते हैं. J&K बैंक से सीखो. और खैर सीबीआई, रॉ, इन सबको तो पूछने वाला कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो माई बाप होगा. J&K बैंक को कोई पूछ भी नहीं सकता. इतना टेंशन है किसी और ऑर्गेनाइजेशन का. सो फन अपार्ट, the most important thing that I want to tell you is that this fight is not only for those who are droppies. अच्छा, ड्रॉपीज का मतलब हर कोई सोचता है इंटरव्यू ड्रॉपीज. भाई जिनको रिटर्न के रिजल्ट के बाद बिना मार्क्स दिखाए छोड़ दिया गया, वो भी तो रिटर्न ड्रॉपीज हैं. सो दिस फाइट इज नॉट ओनली फॉर दोज हु आर इंटरव्यू ड्रॉपीज और हु आर रिटर्न ड्रॉपीज और दोज हु आर सेलेक्टेड एज BA, that is banking associate. This fight is for everyone who feel cheated or who is not satisfied with the entire recruitment process. हर कोई, चाहे वो जो जॉब कर रहा है वो भी हमारे साथ इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि यार हुआ तो उनके साथ भी मजाक है. I mean, after waiting desperately for 2 years, after giving priority to J&K Bank in spite of other options that they might be having, they were offered jobs which were contractual. They were told कि आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रही 2 साल के बाद आपको परमानेंट जॉब दे दी जाएगी. इज दिस अ जोक? सीरियसली, आर वी गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन J&K बैंक्स गुडविल like forever? That's why I'm just want to make sure that everybody is clear that this fight is for everyone who is not satisfied with the entire recruitment process. One thing. Another thing, I must clear you all guys that what are my demands. मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे होते हैं कि एब्जॉर्ब ऑल, एब्जॉर्ब ऑल, एब्जॉर्ब ऑल. क्यों हम भीख क्यों मांगे? एब्जॉर्ब ऑल से अगर वो हमें कल को गेट कीपर लगा देंगे तो क्या हम एब्जॉर्ब हो जाएंगे? एंड क्या गारंटी है कि वो हमें एब्जॉर्ब करने के बाद जॉब परमानेंट करेगा कि नहीं करेगा? हर बार अपनी मनमानी करता है बैंक. So to counter that, our demand is that we want to know the marks. We want to know the standard or the procedure that they adopted to conduct this recruitment. We want to know the merit list. And even if a single discrepancy is found at any stage of this entire recruitment process, we want them to recruit all the 47,816 candidates as relationship executive officer, and that too permanently. अमेज्ड. इनफैक्ट काफ़ी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे दोस्तों ने कहना शुरू किया है कि यार 47,000 बंदा आरई जेन्युइन डिमांड रखे यार, जस्टिस तो सिर्फ उनका बनता है जिनका रिटर्न क्वालिफाई हुआ था. तो लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो और दैट मिसकंसेप्शन और डाउट ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ fraud has been happened in the written stage, then this demand is totally genuine and legitimate. Another thing, what do you think that J&K Bank, whatever it has done, was it genuine? Was it legitimate? Is it acceptable? And another thing, आप हर कोई आप ये बोल रहा है कि यार मैंने रिटर्न में इतना किया था, मेरा तो मार्क्स तो पता कट ऑफ से ऊपर ही होना चाहिए था, मेरा सिलेक्शन में नाम आना चाहिए था, नहीं हुआ. फिर कुछ कहते हैं कि माई इंटरव्यू वेंट सो वेल, आई आंसर्ड एवरी क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस, विद स्माइल, बट स्टिल मेरे को आरई में नाम नहीं आया, मेरा BA में नाम नहीं आया.
कोई कहता है कि फलाने मिनिस्टर ने 13 लाख रुपए दिए हैं उसके भतीजे के लिए और उसके भतीजे को वहां पे जॉब मिल गई है। इतना नहीं, आई केम टू नो कि कोई ये कह रहा था कि 40 साल का बंदा है, उसने कुछ पैसे दिए, वो भी जॉब कर रहा है, आ रही है पता नहीं बीए के पोस्ट पे। इनफैक्ट कोई कह रहा था कि 12 लाख रुपए रेट है बीए की पोस्ट के लिए, 15 लाख पोस्ट है आरई की पोस्ट के लिए। सो आर वी गोइंग टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स? ये बातें सिर्फ र्यूमर्स हैं या क्या है क्या नहीं, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। वी डोंट हैव प्रूफ्स। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चैलेंज द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। वी वांट ट्रांसपेरेंसी। दैट्स व्हाई दिस डिमांड इज टोटल जेन्युइन एंड लेजिटिमेट। अनदर थिंग, पिछली बार भी जब इन्होंने रिक्रूटमेंट की थी तब भी प्रोटेस्ट हुआ था। Those who protested earlier, they were recruited as RE. उसके बाद जो उठे उनको क्लर्क लगा दिया गया। I mean, is protest necessary every time J&K Bank is going to conduct a recruitment? हम प्रोटेस्ट करेंगे, वो हमें एडजस्ट करेंगे, that means we are dependent on the goodwill of bank. Seriously, forever? And what if अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट रिटर्न थिंग कि रिटर्न वाले यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते या क्यों उनको आना चाहिए? क्या गारंटी है कि कोई रिटर्न में फ्रॉड करके भी आरई की जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा? और क्या गारंटी है कि क्या पता कोई डिजर्विंग कैंडिडेट जो पीछे रह चुका है? सो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, आवर डिमांड इज टोटली जेन्युइन एंड लेजिटिमेट, एंड सो इज आवर फाइट. We are challenging the whole recruitment process, and we are demanding relationship executive officer, and that too permanent, for all the 47,816 candidates, if and only if any discrepancy is found at any stage. I hope now you are convinced. So this was all about this legal fight. Now I must come that the things which prompted me to make this video, the current status, the progress, and the possible outcome. So the most important breakthrough that has been happened in this fight so far was the case filed by Advocate Ankur Sharma, in which Honorable High Court has issued a legal notice to IGP Crime seeking inquiry into the matter. I should emphasize here why this step was so important, why this breakthrough is being the milestone for this fight. आपको पता होगा जब हम फाइट कर रहे थे, कुछ लोग मेरे साथ हाई कोर्ट में भी गए थे, हमें हाई कोर्ट में घुसने तक नहीं दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि J&K बैंक पे केस ही नहीं हो सकता। सब ये कह रहे हैं बड़े से बड़ा वकील हो जाए या जो मर्जी हो जाए। काफी बंदे मेरे पास अप्रोच किया, काफी बंदों ने कि तरुण ये फाइट मत छोड़ना, इसके पीछे रहना, हम तुम्हारी मदद करेंगे पैसे से, तुझे कहीं प्रोटेस्ट करना है तब बताना, जो भी करना बताना। I said thank you, I appreciated that. But when I went to them कि यार I need legal advice, I'm not able to file a case, they failed. Even the honorable judges sitting at the chairs of chairman as well as secretary of State Legal Aid Services Authority sitting in High Court, they failed to file such a case. But Advocate Ankur Sharma did. And we are going to win this fight because of this case. Despite of that, the legal notice that was sent by Advocate Abhimanyu Sharma, who's been helping me from the very beginning, we are still waiting for the reply from the board directors of J&K Bank. In that legal notice, this period of 60 days was given to the J&K Bank board directors to solve out our issues, and they still have more than 2 weeks. We are still waiting for the reply. लगता तो नहीं है कि वो रिप्लाई करेंगे। इनफैक्ट चाहता भी हूँ कि वो रिप्लाई ना करें। उनका रिप्लाई नहीं आया, दैट गिव्स मी एन एडवांटेज, लीगल एडवांटेज, तो वी कैन स्मूथली टेक आवर नेक्स्ट स्टेप्स। बट स्टिल इन केस उनका कोई रिप्लाई आता है तो देखते हैं क्या आता है। एंड एज फार एज रिप्लाईज फ्रॉम PMO, प्रेसिडेंट, गवर्नर, CM, डेप्यूटी CM, दीज रिप्लाईज आर कंसर्न, सो लेट मी टेल यू दैट अभी तक इनके रिप्लाईज कुछ हेल्पफुल है नहीं। So we should not think about those replies at this stage. But हाँ, उनके जो replies हैं later stage पे उनको भी tackle किया जाएगा, उन पे भी काम किया जाएगा। So this was the present status. Now coming to the possible outcome. तो हर कोई मेरे से आजकल ये भी पूछता है कि भाई क्या लगता है क्या बनेगा, क्या हमें कुछ मिलेगा, जॉब मिलेगी? तो यारों, how can I guarantee you jobs?
आई कैन नॉट. इसीलिए फर्स्ट डे से आई हैव बीन टेलिंग यू दैट प्लीज कीप वर्किंग ऑन योर रिस्पेक्टिव गोल ऑब्लिक करियर. जे एंड के बैंक ने जितना हमें खज्जल करना था कर दिया. इसके बाद इस पे भरोसा मत रखो, अपने काम करते रहो. व्हाट आई कैन गारंटी यू इज दैट यू विल गेट सेटिस्फेक्शन. आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी. ये काम जो हम कर रहे हैं अगर पहले हुआ होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते. हमारे भाई बहन ऐसे दिन ना देखें फ्यूचर में, इसलिए हम ये फाइट लड़ेंगे और जीतेंगे. तो अनदर थिंग विच आई कैन से स्ट्रांगली, विच आई कैन फील स्ट्रांगली इज दैट कि अगली रिक्रूटमेंट जे एंड के बैंक की ऐसी नहीं होगी. एंड नाउ कमिंग टू दैट जॉब थिंग, तो जस्टिस किसी के बाप का नहीं है. इनफैक्ट जे एंड के बैंक का तो बाप ही नहीं है, तो इससे भी भूल जाओ, तुम निश्चिंत हो जाओ. बट वी जस्ट हैव टू प्रूव दैट इनजस्टिस हैज बीन हैपेंड विद अस. जॉब्स ऑटोमेटिकली मिलेंगी. अरे यार तब तक तुम्हें खुद जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन हाँ, अगर परमानेंट जॉब हमें मिल गई जस्टिस के थ्रू तो फिर तो करेंगे यार. अच्छा बैंक है. हमारी हमारी स्टेट की इकोनॉमी एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल बॉडी है हमारी स्टेट की, जे एंड के बैंक. ये काम अच्छे से करेगा तो हम अच्छे से काम करेंगे. पेपर्स में देखो तो ये लॉस में जा रहा है. न्यूज आ रही थी जे एंड के बैंक लॉस ऑफ इतना, इस क्वार्टर में इतना, उस क्वार्टर में इतना. व्हाट्स रॉन्ग विद द जे एंड के बैंक? नलायक बैठे हैं क्या वहां पे? सो इसीलिए वी हैव टू फाइट दिस fight and we have to win it. Now, I should say something about strategy about how we are going to fight this fight. So presently, as per the directions of Advocate Ankur Sharma, we are going to fight this fight over 3 fronts. One such front is that we have to be register all those 47,816 candidates or who are willing to be registered as petitioners in the case of Advocate Ankur Sharma. This was the must and first step. And another fronts, I'm not going to disclose them right now. But yes, as we proceed further, we will be disclosing all those actions or steps from time to time. So this was all about the candidates who are associated with us. Now let me cover or let me deliver some message to the general public also. जब हमने शुरू हुए थे तो हमें लगा नहीं था कि केस इतना बड़ा बनेगा. इनफैक्ट मेरे को तो कोई नॉलेज नहीं थी. मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि नेशनलाइज्ड बैंक क्या होता है और आरटीआई के अंडर ही आता है कि नहीं आता. बट स्टिल एज वी प्रोसीडेड हमें बहुत कुछ पता चलता गया और ये केस बहुत बड़ा बनता गया. तो आई थिंक नाउ इज द टाइम जनरल पब्लिक शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन. तो आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू टेल जनरल पब्लिक दैट प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट जे एंड के बैंक is not a government bank. It's not even semi-government bank. This bank is a banking company, as replied by the CEO of J&K Bank to the CM grievance cell over the grievance that I submitted. This bank is a banking company. तो इसीलिए जब भी आप इससे कोई लेन देन करें, प्लीज कीप दैट इन माइंड. आरटीआई नहीं लग सकती इस बैंक पे. यू कैन नॉट फाइल a writ petition in the Honorable High Court against J&K Bank. This bank is not considered as state, despite of the fact that J&K government holds majority of its shares. जी हाँ, ये बैंक सरकारी नहीं है. स्टेट का मतलब होता है ऐसी बॉडी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम गवर्नमेंट कह सकें. उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, आधे से ज्यादा. इस बैंक में आधे से ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट का है, लेकिन ये फिर भी गवर्नमेंट नहीं है, सरकारी नहीं है. ये हाल है जे&के बैंक का. और आई वांट टू और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दैट हमने ये फाइट शुरू की थी एक लीगल और पीसफुल वे में. हमने ना ही प्रोटेस्ट किया, ना ही जे&के बैंक से रिक्वेस्ट की. बट स्टिल मेरे कुछ दोस्त ऑनरेबल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर द्राबू साहब के पास गए थे, क्योंकि वो जे&के बैंक से ताल्लुक रखते हैं और वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी स्टेट के. उनके पास गए थे, उनको अपनी हमने इशू बताया था, अपना ग्रीवेंस बताया था, बट उनको इशू पहले से ही पता था. उन्होंने बेइज्जत करके निकाल दिया मेरे दोस्तों को, ये कह के कि यू ऑल आर फेलियर्स, तुम सब फेलियर्स हो. और इतना ही नहीं, घर से बेइज्जत करके निकालने के बाद उन्होंने मीडिया पे भी फेलियर कहा और कहा कि ये सब फेलियर्स हैं जो शोर मचा रहे हैं. एक
रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठे इंटेलेक्चुअल मिनिस्टर ने हमारे साथ ऐसा ट्रीट किया, क्यों? हालांकि जब हमने ये फाइट शुरू की थी, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट हमने ये ग्राउंड रूल बनाया था कि हम किसी भी पॉलिटिशियंस को इसके बीच में नहीं आने देंगे। बट स्टिल ऐसे मुद्दे जब भी कहीं उठते हैं ऑल ओवर द कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेता लोग खुद आ जाते हैं बीच में। लेकिन अभी तक ना ही कोई रूलिंग पार्टी का ना ही कोई अपोजिट पार्टी का हमारे साथ इस फाइट में आया। क्यों? अरे यार, हम तो गवर्नमेंट के पास भी गए, ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल डिप्टी सीएम, गवर्नर, इतना नहीं, मैं तो अपने लोकल विधायक के पास भी गया हूं। आई हैव पुट फॉरवर्ड दिस ग्रीवेंस। हर कोई अपने अपने जितने भी हमारे साथ कैंडिडेट्स हैं, वो हर कोई अपने अपने लोकल विधायक के पास भी गए होंगे, चाहे वर्बली चाहे रिटर्न। मैंने तो रिटर्न दिया था अपने विधायक को, बट स्टिल किसी ने कोई हेल्प नहीं की। आखिर क्यों? आपको भी पता है जो बातें आप सुनते हो, जो अब मैं कहने जा रहा हूं, कि ये सच लग रहा है मुझे कि J&K बैंक हमारे स्टेट की सोने की मुर्गी है, जिससे शायद प्रेजेंट गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी बेनिफिट ले रही होगी और ऑपोजिट पार्टी वेट कर रही होगी कि कब हम पावर में और कब हम फायदा लें। आई एम नॉट सेइंग दैट दीज थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग, आई एम जस्ट सेइंग दैट दीज आर रूमर्स इन द एयर विच कैन बी राइट और रॉन्ग। बट हम और क्या सोचें, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 2 साल हमने रिक्रूटमेंट का वेट किया, अब हम जस्टिस का वेट कर रहे हैं इतना टाइम लगाने के लिए। हमें लगा था बहुत सिंपल सा केस होगा, हम पुट फॉरवर्ड करेंगे, हमें ट्रांसपेरेंसी, हमें मार्कशीट्स वगैरह सब दिखाई जाएगी, हम सेटिस्फाइड होंगे, हमें बताएंगे ये कि किस रूल पे इन्होंने सिर्फ 350 कैंडिडेट्स लिए हैं, और सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये इशू और बड़ा हो गया, रिक्रूटमेंट से बड़ा हो गया, ये पूरा चैलेंज हो रहा है कि J&K बैंक की एग्जिस्टेंस पे चैलेंज हो रहा है, कोई बाप ही नहीं इनका। तो इसीलिए मैं आपको अच्छे से बता दूं कि ये कंपनी है, बैंकिंग कंपनी। इससे जब भी आप लेन देन करते हो, ये दिमाग में जरूर रखना। विजय माल्या भी एक कंपनी वाला ही आदमी था, बाकी आप खुद समझदार हो। यहाँ पे एक विजय माल्या नहीं, यहाँ पे बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, शायद 6 या 7 हैं, मैंने लीगल नोटिस भेजा था उनको। तो यही मैसेज था जनरल पब्लिक के लिए। नाउ लेट मी डिलीवर अ स्पेशल मैसेज फॉर J&K बैंक। J&K बैंक, आपने हमारे साथ बद्दा मजाक किया है। अनएम्प्लॉयड यूथ से आपने 500 रुपए ठग के 2 साल उनको खज्जल करने के बाद, जिनको जॉब दी उनको एक तो कंट्रेक्चुअल जॉब दी, और जिनको नहीं दी उनको पूरी तरह खज्जल कर दिया। कुछ लोगों की शादियां टूट गई, कुछ लोगों की गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, कुछ लोगों को घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने ताना मार मार के तंग कर दिया। कुछ लोग ओवर एज हो गए, कुछ लोग अपनी दूसरी स्टेट में जो जॉब करते थे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई नेटवर्क इंजीनियर था, वो सब जॉब छोड़ के आए थे अपनी स्टेट में कि हम अपनी स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। अपनी प्रायोरिटीज उन्होंने चेंज कर दी, वो खज्जल हो गए। कुछ लोग ओवर एज हो गए, और कुछ लोग मेंटली इतना डिप्रेस हो गए कि वो, उनको समझ नहीं आ रहा वो लाइफ में क्या करें। आपने फ्रस्ट्रेट कर दिया J&K की यूथ को। J&K की यूथ ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से, पब्लिक सर्विस कमीशन से, आरटीओ ऑफिस से, कश्मीर इशू से। हम लोग जब बाहर स्टेट में जाके काम करते हैं, तो जिस नजर से हमें देखा जाता है, हमारे उस पे इलेक्शन कार्ड पे उर्दू देखी जाती है, तो हमें अलग नजर से ट्रीट किया जाता है। हम इन सब प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेटेड हैं, और आपने हमारी स्टेट में हमें ही फ्रस्ट्रेट कर दिया। लेट मी टेल यू समथिंग दैट यू मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी। व्हाट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस फोर्स? द यूथ। यू हैव जस्ट फ्रस्ट्रेटेड अस। जस्ट इमेजिन व्हाट ए फ्रस्ट्रेटेड यूथ कैन डू। हम कुछ भी कर सकते हैं, अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, ना ही अच्छे से प्रोटेस्ट किया, ना ही अच्छे से हंगामा किया। हम में हर तरह के लोग हैं, हम में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, ताकतवर हैं, कमजोर हैं, बुद्धिमान हैं, बेवकूफ हैं। हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, एक होकर अगर मिलने का हमने संकल्प ले लिया। हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो आपने खिचड़ी फैलाई हुई है, इसको साफ कर दो। ये मेरी पहली और आखिरी विनती है आपसे, बस यही था। अच्छा हाँ, एक और बैंक के लिए नहीं, साइड टू ऑल दोस 47,816 कैंडिडेट्स। तो यारो, अभी तक आई हैव बीन टेलिंग यू दैट आई विल नॉट लेट मनी गेट इन्वॉल्व इन दिस केस। अभी तक पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, और ना ही आगे मैं होने दूंगा। बट स्टिल ये जो डॉक्यूमेंट्स मुझे ईमेल पे आ रहे हैं, अभी तक 85 समथिंग आ चुके हैं। आई ट्राई कि सरकार ही इसका खर्चा उठाए, जिनको प्रिंट करना है इनको। क्योंकि आपको मैं पहले भी बताता हूँ, फर्स्ट डे से, लीगल एड सर्विसेज के बारे में जो लोग नहीं जानते, करोड़ों रुपए खर्चा इनको बजट मिलता है 1 साल का, ऐसे ही काम करने के लिए। स्टूडेंट्स के, अनएम्प्लॉयड के, औरतों के, पागलों के, या फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए। लेकिन
ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो गए, क्योंकि मैं तो आशा करता हूँ कि हजारों बंदा मेरे साथ आए। इनफैक्ट बंदे आएंगे, क्योंकि काफी बंदों के मेरे को फोन वगैरह आ रहे थे जो कह रहे थे कि हमने JNK बैंक का पेपर नहीं दिया, लेकिन भाई हम बड़ा परेशान है, तो हम इससे बदला लेंगे ताकि बाकी चीजें भी सुधरें। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थाउजेंड्स में ये काउंट जाएगा जो पिटिशनर बनेगा। तो ये सब अगर मुझे प्रिंट करना पड़ा तो यार खर्चा पड़ जाएगा। मैं खुद एक एमटेक स्कॉलर हूँ, तो अगर लीगल एड सर्विसेज वाले नहीं माने, लड़ूंगा उनसे थोड़ा सा, लेकिन कितना लड़ूंगा, अकेले कहाँ कहाँ लड़ूंगा। तो अगर उन्होंने नहीं हेल्प की तो फिर ये मुझे खुद ही प्रिंट करने पड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है, अगर प्रिंट करना जरूरी पड़ जाता है, तो मैं आपसे ₹1 पर पेज, आई नो ए गाय जो प्रिंट आउट कर देगा मेरे को ₹1 में, तो मैं ₹1 पर पेज के हिसाब से आपसे पैसे मांगूंगा मेरे पेटीएम नंबर पे। अभी मत भेजना, अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा। थैंक यू, वी विल फाइट दिस, वी विल विन दिस, वी आर टुगेदर, एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस JNK बैंक डाउन। दैट्स इट, थैंक यू।